سر ایم آئی کو اپنی سیل بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے پاس جو ہے وہ جو پروڈکٹ رینج ہے وہ اگر 50% نہیں تو کم 40 to 50 کے راؤنڈ باؤٹ جو ہے، اگر ٹوٹلی پروڈکٹس نہیں بھی ہوتی تو 50% کے راؤنڈ باؤٹ ہونی چاہیے، اور جو پروڈکٹس آ رہی ہیں ہمارے پاس وہ ریگولرلی آنی چاہیے۔ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پروڈکٹ جو آئی ہے ابھی ماڈل لانچ ہوا ہے اور وہ ایک دفعہ آیا اس کے بعد اس کا اسٹاک نہیں آیا۔ انجن تو ہے ہی نہیں اس گاڑی میں، تو وہ بیٹری کا جو ہے ظاہر ہے اس کی ریپلیسمنٹ تو ہونی چاہیے۔ یہاں پہ اگر بنے گی بیٹری تو وہ ہمارے لیے اور بہتر ہو جائے گا کہ وہ ہمیں کاسٹ اس کی جو ہے وہ بہت کم پڑے گی۔ اسمارٹ پلانٹ پروٹیکشن سسٹمز یعنی انٹیلیجنٹ فائٹو پروٹیکشن کا مقصد فصلوں کی صحت۔ ناظرین محترم السلام علیکم، پروگرام ٹاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان نسرین۔ پاکستان کا 2021 تا 2022 کے لیے کپاس کی پیداوار کا ہدف 10.5 ملین گانٹھ ہے، جو کہ گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 50% زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کپاس کا زیر کاشت رقبہ پچھلے سال کے مقابلے میں 16% بڑھا کر 2.3 ملین ہیکٹر سے تجاوز کرنے کی توقع ہے۔ اس وقت کئی ممالک میں کاٹن کی قیمت بلند سطح پر ہے۔ کیا پاکستان شیڈول کے مطابق اپنا ہدف حاصل کر سکتا ہے؟ آئیے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ لاسٹ ایئر تو بہت شارٹ ہوگی، مینس اب مور دین 50% ہمیں امپورٹ کرنی ہے۔ ہماری جو اس وقت کی آپ کہہ لیں کہ جو ابھی کنزمپشن بڑھنے کی چانسز ہیں، کیونکہ جو ابھی نئے یونٹس آ رہے ہیں اس سے فردر ہوگی، کنزمپشن بڑھے گی۔ تو ابھی تک کی آپ دیکھیں تو یہ آپ 14 ملین بیلز جو ہے نا وہ کنزمپشن ہے۔ گھریلو کپاس کی کھپت زیادہ ہے اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کی کپاس کی مانگ بھی زیادہ ہے۔ 2020-2022 میں پاکستان نے کپاس کی پیداوار کا ہدف 50% کے اضافے سے سالانہ 10.5 ملین گانٹھوں تک بڑھا دیا۔ کپاس کی کاشت کے رقبے کا ہدف 233 ہیکٹر سے زیادہ ہے، جو پچھلے سال کے 201 ہیکٹر سے 16% زیادہ ہے۔ اور اس سال میں جو ابھی آپ کہہ لیں کہ گورنمنٹ کی جو سروس ہیں یا ان کی جو ٹارگٹس ہیں وہ ہیں 10.5 کے۔ اب 10.5 بھی اگر اچیو کر لیتے ہیں تو دین اگین وی ہیو ٹو امپورٹ 14 از دی ریکوائرمنٹ۔ لیکن جو ابھی تک کی فگرز آئی ہیں، اسٹیٹسٹکس آئی ہیں ڈپارٹمنٹ اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کی، اس میں یہ کہ 20% ٹارگٹ سے لیس سوئنگ ہوئی ہے کاٹن کی۔ سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ نئے سال میں کپاس کی اصل کاشت کا رقبہ ہدف سے 13.4% کم ہے۔ لہذا کپاس کی فصل کی تشخیصی کمیٹی نے ستمبر 2021 میں پیداوار کے ہدف کو 19.5% کم کر کے 10.5 ملین گانٹھوں سے 8.46 ملین گانٹھوں تک پہنچا دیا، جس کا وزن تقریباً 14,38,200 ٹن تھا۔ تاہم صنعت کے اندرونی ذرائع کے خیال میں کپاس کے پودے کے رقبے میں کمی کے علاوہ کپاس کے پودے لگانے کے رقبے کی محدودیت بھی کپاس کی اقسام اور پیداوار کے طریقوں کی کمی کا باعث بنی۔ پاکستان میں ابھی تک 100% مینول پکنگ ہے۔ سب سے بڑا جو پرابلم مینول پکنگ میں ہے اور جو اس وقت پاکستان میں ہے وہ ہے کنٹیمنیشن کا۔ کنٹیمنیشن ہم اسے کہتے ہیں کہ جو فارن فائبرز بھی کہہ سکتے ہیں کہ ادر دین کاٹن، جو آپ کوئی فائبرز یا کوئی مٹیریل کاٹن میں انٹر ہو جاتا ہے تو وہ اسے کنٹیمنیشن کہیں گے، جس میں آپ پولی پروپلین ہے، سنتھیٹک فیبرکس کے پیسز ہیں یا ڈائڈ فیبرکس کے پیسز ہیں، وہ سارے کنٹیمنیشن بن گئی۔ تو وہ مینول پکنگ کے، جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ جیسے پکرز نے پک کیا اور اس کو سٹور کیا، اور سٹور کرنے کے بعد ٹرانسپورٹ کیا، اس سارے پروسیس کے دوران وہ کنٹیمنیشن انٹر ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، کیونکہ اس وقت پاکستانی کاٹن جو اگر ہم بات کریں تو صرف کنٹیمنیشن کی وجہ سے بہت سے پروڈکٹس میں یوز نہیں ہو سکتی۔ جہاں بھی وائٹ کلر میں آپ کی کوئی بھی پروڈکٹس بننی ہے، شرٹنگ بننی ہے، آپ کے نٹس بننے ہیں، کوئی بھی وائٹ کلر میں جائے گا تو کنٹیمنیشن پرابلم ہے۔ ڈائڈ میں جاتی ہے تو جو پولی پروپلین کی کنٹیمنیشن ہوتی ہے وہ ڈائی نہیں ہو سکتی، وہ آپ کے سپاٹس ہیں، جو شرٹ میں آپ کے یہاں کوئی سپاٹ آ گیا اٹ مینس کہ پورا فیبرک آپ کا ریجیکٹ ہو گیا، اور ریجیکشن اس کی وجہ سے آپ کی کہہ لیں کہ صرف کنٹیمنیشن کی وجہ سے زیادہ ہے۔ کاٹن کو پیچھے لے جانے والی
ये दवाइयाँ हैं और सीड है। जब भी हमें कोई अच्छा सीड मिल जाता है या नया सीड बनता है तो वो महंगा इतना होता है, 10-12 एकड़ वाला सीड वो लगा भी नहीं सकता। वो बड़े ज़मींदार के पास आता है, 3-4 साल के बाद हमें मिलता है, उसकी क्वालिटी भी वो नहीं होती। ये मसले हैं। छोटे ज़मींदार को सपोर्ट करें, एक नंबर चीज़ें तैयार करें, ये फैक्ट्रियों वालों को पर कड़ी नज़र रखें। बैनुल-अक़वामी मंडी में रुई की कीमत 2021 के बाद से बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है, जो कि सालाना 50% से ज्यादा है, और रुई की दरामदी लागत में इजाफा हुआ है। कीमत को कंट्रोल करने के लिए सबसे सीधा तरीका अब भी पैदावार को बढ़ाना है। फरवरी 2022 के वस्त तक अमरीकी महकमा ज़राअत के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक इस साल पाकिस्तानी मार्केट में कपास की पैदावार 7 मिलियन गांठों से तकरीबन 1.15 मिलियन टन कम रही। अगले 4 महीनों में हतमी पैदावार का अब भी इंतजार है। चुनांचे हम मौजूदा हालात के तहत ज्यादा मुअस्सर तरीके से पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। सनत के अंदरूनी लोगों का ख्याल है कि बेहतरीन तरीका बैनुल-अक़वामी ताउन हासिल करना है। तो जो चाइना से कोलैबोरेशन की बात हो रही थी, उसमें ये है कि एक तो ह्यूमन जो रिसोर्सेज है, ट्रेनिंग है साइंटिस्ट की, ये हो सकता है, और 2 लैब्स अगर हम बायोटेक्नोलॉजी जीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसको इम्प्रूव कर लें, और एक ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, उसमें ये आ जाएगा कि हमारा एक स्टूडियो बन जाए, और एक अगर रेडियो स्टेशन इंस्टॉल हो जाए सिर्फ कॉटन ग्रोज के लिए, कि एक्सपर्ट्स हमारे पास होते हैं, हम हर वक्त जो मौके के मुताबिक उनको हिदायत देते रहें ताकि वो उस पे अमल करके अपनी जो क्रॉप है उसको बेहतर कर सकें। तो इन 2-3 चीज़ों में अगर फौरी तौर पे कोलैबोरेशन हो जाए तो वो हमें मज़ीद सपोर्ट करेगा। इसी इक़्तिसादी जोन्स में हमारी चीनी कंपनियां कीड़े मार अद्वियात की तैयारी के यूनिट्स बनाने और शुरू करने में सरमायाकारी कर रही हैं। पाकिस्तान में हमारे पास कीड़े मार दवा बनाने वाले यूनिट नहीं हैं और 99% से ज़्यादा कीड़े मार अद्वियात चीन से दरामद की जाती हैं। अगर इन अद्वियात की पैदावार पाकिस्तान में शुरू कर दी जाए तो ये किसानों के लिए आसान, सस्ती और ज़्यादा काबिल हुसूल होंगी। और मैं इस प्लेटफॉर्म से एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि कपास के खेतों में कीड़े मार अद्वियात के स्प्रे के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ज़रिए ज़्यादा ज़ूद असर, मतवाज़न और एक ही जैसा स्प्रे किया जा सकता है। इसलिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अहमियत का हामिल है। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में कपास की पैदावार के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान रिवायती तौर पर एक बहुत मजबूत ज़रई मुल्क रहा है, लेकिन हमें अपनी ज़राअत को जदीद बनाने के लिए मदद की ज़रूरत है। चीन ने इन शोबों में बहुत अच्छा काम किया है। अनाज वो शोबा है जिसमें ताउन किया जा सकता है। CPEC के तहत ज़राअत पर एक वर्किंग ग्रुप मौजूद है। ये दोनों मुल्क मुख्तलिफ तहकीकी मनसूबों के एक्शन प्लान पर काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ ज़रई मसनूआत के तरक्याती पायलट जोन कायम कर रहे हैं। चावल पाकिस्तान की सबसे अहम नकद आवर फसलों में से एक है, जो मुल्क के लिए कसीर ज़ेर मुबादला लाता है, और इसकी पैदावार पाकिस्तान के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से गहरा ताल्लुक़ रखती है। ताहम पाकिस्तान में पानी की किल्लत और ज़मीन के खादीपन जैसे मसाइल की वजह से कुछ काबिल काश्त अराज़ी बेकार हो गई है, जिसने चावल की पैदावार को बहुत मुतासिर किया है। हालिया बरसों में चीन ने मोलेक्युलर ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए खुश्कसाली और नमक मज़ाहम चावल की अक़साम काश्त की हैं। क्या ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की चावल की पैदावार के लिए मददगार हो सकती है? आइए हमारी रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान एक बड़ा चावल उगाने वाला मुल्क है, जिसमें 2021 में काबिल काश्त रकबा 3.3 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गया है। इसमें आला किस्म की इकसाम, वाफर अफरादी कुव्वत, बड़ी जरखेज जमीन और अच्छे मौसमी हालात मौजूद हैं। ताहम इसके बहुत से नुकसानात भी हैं, बशमूल कम औसत पैदावार और इन्हतात शुदा बीज। तो ये इसके ऊपर हमें खुसूसी तवज्जो देनी होगी। सीड का इशू है, पाकिस्तान में वैराइटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आनी चाहिए। नॉन बासमती की वैरायटी चाइना से सीड आने के बाद से हमें बहुत बड़ी प्रोडक्शन का सपोर्ट मिल गई है। हमारी एक्सपोर्ट्स जो बढ़ी हैं वो मेन वजह यही है कि हमारी जो हाइब्रिड सीड वहाँ से इंपोर्ट हुआ है और अब यहाँ पे लोकल भी बन रहा है यहाँ पर। कि हमारे इतने हम बायोटेक्नोलॉजी की एड यूज़ नहीं कर रहे इधर,
जेनेटिक इंजीनियरिंग की इतनी हम एड यूज़ नहीं कर रहे, हम रवायती तरीक़ों से अपना ब्रीडिंग प्रोग्राम चला रहे हैं काम। तो अगर वो हमें सपोर्ट दे सकते हैं और हमारे साथ ये कोलैबोरेशन हो सकती है, मतलब मैं चाहूँगा कि रिवायती अफजाइश इंसानी तजर्बों पर मबनी है, खसलतों का पता लगाने के लिए आँखों पर इन्हिसार करती है, खदोखाल के जीन पर नहीं। सालमाती अफजाइश टेक्नोलॉजी का लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल इस बात का पता लगाने के लिए है कि आया पौधे में कौन सी खसूसियात का हामिल जीन मौजूद है। जीन का पता लगाने के बाद इसकी खासियत को यकीनी बनाया जा सकता है। सालमाती अफजाइश रिवायती तरीके से ज़्यादा दुरुस्त है। पाकिस्तान में चावल की मौजूदा बवाई के मसाइल के जवाब में आजमाइशी पौधे लगाने के लिए चीन से ज़्यादा पैदावार वाली अक़साम मुतारिफ़ करवाई जा सकती हैं। पाकिस्तान छोटे काश्तकारों के लिए मौजू चीन की जदीद ज़रई मशीनरी और पौधे लगाने की टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ़ करा सकता है ताकि वो चावल की पैदावार में इजाफा कर सकें। पैदावार के अलावा पाकिस्तान के चावल के बीज में दीगर खसूसियात में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी लाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान खुश्क और नीम खुश्क इलाकों में वाक़ है जहाँ बारिशें कम होती हैं, इसलिए फसलों की कटाई खुश्कसाली से बहुत मुतासर होती है। 2018 में खुश्कसाली की वजह से फसलों की मजमूई पैदावार में 34% कमी हुई। खुश्कसाली गालिबन पाकिस्तान को दरपेश सबसे बड़ा एबियाटिक तनाव है। पाकिस्तान में जो हमारा जो 22-23% एरिया जो है वो कल्टीवेशन पे चलता है और ह्यूज एरिया पड़ा हुआ है जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं है। कुछ जगह माइंडसेट की वजह से ग्रोअर के वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है। एक मशहूर बात ये कही जाती है कि मुल्क के कुल पानी की खपत में ज़राअत का हिस्सा 70% है और चावल के खेत पूरे ज़रई पानी की खपत का 70% है। हमने हमेशा खुराक की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए आला पैदावार वाले बीज की अफजाइश पर जोर दिया है और खुश्क साली से बचने वाली अफजाइश पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। किसान चावल लगाते वक्त सैलाबी आबपाशी यानी बेपनाह पानी देने को तरजीह देते हैं, जिससे पानी के ज़खायर ज़ाया होते हैं। खुश्क साली के जवाब में फसलों के ज़रिए पानी के इस्तेमाल की शरह को बेहतर बनाना और खुश्क साली के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाली अक़साम काश्त करना ज़रूरी है। आम हालात में आबपाशी के लिए कम पानी की ज़रूरत होती है और पानी के वसाइल को बचाया जा सकता है। आम तौर पर चीन में खुश्क साली के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाली अक़साम तकरीबन 30% पानी बचा सकती हैं। खुश्क साली के हालात में खुश्क साली के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाली अक़साम भी पैदावार के नुकसान से बचने के लिए आम तौर पर उगाई जा सकती हैं। पाकिस्तान भी नमकियात से शदीद मुतासर होने वाला मुल्क है। मुल्क के पौधे लगाने वाले रकबे का तकरीबन 30% खारेपन से मुतासर है। पंजाब के खित्ते में ज़ेर ज़मीन पानी के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से खारीपन में भी इजाफा हो रहा है। जिस तरह खुश्क साली के खिलाफ मुज़ाहमत करने वाली अक़साम को खुश्क साली के दबाव के दिनों में लगाने की ज़रूरत है, उसी तरह नमकीन अलकली बर्दाश्त करने वाली चावल की अक़साम को भी खारी अलकली ज़मीन में लगाने की ज़रूरत है। कि चाइना अगर हमें जैसे अब वो ये इसके ऊपर सैलिनिटी के ऊपर वो काम कर रहे हैं तो इट्स ग्रेट, हमारा बहुत सारा एरिया उसके अंदर है, तो अगर वो हमारे साथ मटेरियल जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं या हमें कोलैबोरेशन हमारे साथ होती है, हम विज़िट कर लेते हैं उनके एरिया के अंदर और वो हमें जो है उसके साथ सजेस्ट करते हैं, क्योंकि हवाओं में तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। इसी तरह अभी हम अपने लेवल पर यहाँ सैलिनिटी पे काम कर रहे हैं। नमकीन अलकली मिट्टी पर उगाए जाने वाले चावल का जायका आम मिट्टी पर उगाए जाने वाली उसी किस्म से बेहतर होता है। चीन के शहर थियानजिन में एक किस्म का चावल पाया जाता है जिसे श्याओचन चावल कहते हैं, जो बहुत लजीज होता है। ये नमक बर्दाश्त करने वाला है और मामूली नमकीन हालात में उगाया जाता है। इसके अलावा इसकी आबपाशी के पानी में नमक की एक ख़ास मिकदार भी होती है। नमकीन और अल्कलाइन ज़मीनों में बहुत से मादनियात मौजूद होते हैं जो चावल में निशास्ता की सुस्त लेकिन काफ़ी मिकदार में जमा होने का बायस बनते हैं, लिहाजा जायका बेहतर होता है। पाकिस्तान में बासमती चावल एक अहम बरामद कुनिंदा फसल है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक बासमती की बरामदात में 41% इजाफा हुआ और माली साल 2021-2022 के 7 माह में 4,14,190 टन चावल बरामद किए गए, जबकि कम पैदावार इसकी बरामदी सलाहियत को महदूद करती है। और इसके साथ बासमती का हाइब्रिड सीड को लाना पड़ेगा और बासमती का जो एरिया है, जब तक हम उसकी प्रोडक्शन नहीं बनाते बासमती चावल की, उसकी एक्सपोर्ट नहीं बन सकती। हमें तो बासमती के अंदर रहना, मैं आपको बताऊं तो बासमती के अंदर रहने के लिए हम बासमती में हमारी उसके अंदर वो हेल्प
जितने भी वेज हैं, जाहिर है वैरायटीज़ को इम्प्रूव करने का तरीका एक ही है पूरी दुनिया में, मैं आपको बता दूं। वो क्या है कि उसके अंदर जाहिर है सबसे पहले आपको मटेरियल चाहिए। मतलब अगर वो मुझे साल्ट टॉलरेंट मटेरियल दे देते हैं। चीनी और पाकिस्तानी चावलों का जीनियाती मवाद एक दूसरे के लिए है। पाकिस्तान का बासमती चावल बहुत मशहूर है, इसकी पैदावार ज़्यादा नहीं है और इसकी मुज़ाहमत निस्बतन कम है, लेकिन इसका मयार आला है। इसकी शक्ल पतली है और पकाने के बाद इसकी लंबाई 2 गुनी हो सकती है और ये बैनुल-अक़वामी मार्केट में बहुत मकबूल है, जबकि चीन की अक़साम ज़्यादा पैदावार और अच्छी मुज़ाहमत की हामिल हैं। हमें नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए पाकिस्तानी चावल की आला किस्म की पैदावार और क़ुव्वत मुज़ाहमत को बेहतर बनाने और चीनी और पाकिस्तानी चावल के फ़वाइद को यकजा करने की ज़रूरत है। ये मुस्तक़बिल के पाक चीन चावल ताउन की समत हो सकती है। क्रूड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो सीपैक के तहत पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ने हाल ही में पावर हाउस में अपना चौथा और आखिरी रोटर कामयाबी के साथ लहराया। ये इस मंसूबे के कमर्शियल ऑपरेशन की तरफ एक अहम पेशरफ्त समझी जाती है। क्रूड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से न सिर्फ रोज़गार फराहम हुआ बल्कि बिजली की लागत में भी कमी आएगी। आज के प्रोग्राम में हम इस पावर स्टेशन का दौरा करेंगे और प्रोजेक्ट लीडर की कहानियां भी सुनेंगे। क्रूड हाइड्रो पावर स्टेशन दरियाए जेहलम पर सूबा पंजाब पाकिस्तान में ज़ेरे तामीर है। हमने इस मेगा पावर स्टेशन के करीब क्रूड पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड KPCL के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर लू दोंग शेंग से मुलाकात की, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में बहुत अहम किरदार अदा किया है। लूदंग शंग 1970 में चीन के सूबे शानशी में पैदा हुए और 2003 से बीजिंग में मुकीम थे। वो 2004 में पहली बार काम के सिलसिले में पाकिस्तान आए और 2014 से क्रूड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए KPCL में काम किया। शुरू से ही उन्हें और उनकी टीम को जमीन के हुसूल, मिसमारी और दोबारा आबादकारी जैसे कठिन मसाइल का सामना हुआ। अब चूंकि पावर स्टेशन तकमील के करीब है, लिहाजा वो इंतहाई फख्र महसूस कर रहे हैं। मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि अगले चंद महीनों में 720 मेगावाट का पनबिजली का मंसूबा बिजली की मुकम्मल पैदावार शुरू कर देगा। हमारी कंपनी ने इस मंसूबे के लिए पूरी लगन के साथ बहुत मेहनत से काम किया है। ये भी हमारी कोशिशों की बदौलत है कि तकरीबन 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग तेज़ी से अमल में लाई गई और 2016 से पूरे प्रोजेक्ट की तामीर मुसलसल आगे बढ़ रही है। इसके अलावा हमारे प्रोजेक्ट ने तमाम कौमी और बैनुल-अक़वामी माहौलियाती मयारात की पाबंदी की है। मुझे यकीन है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौमी ग्रिड को मुस्तहकम, सस्ती और काबिले एतमाद बिजली फराहम करने के साथ साथ कम्युनिटी के मयारे ज़िंदगी को भी बेहतर बनाएगा। क्रूड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस्लामाबाद से तकरीबन 76 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। 720 मेगावाट सलाहियत के साथ ये सालाना 3 बिलियन किलोवाट घंटे से ज्यादा साफ तवानाई फराहम कर सकता है, जिससे मुल्क में तकरीबन 50 लाख अफराद को बिजली फराहम की जा सकती है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज को 3.5 मिलियन टन सालाना कम करने में भी मदद मिलेगी। लू का ख्याल है कि इससे पाकिस्तान के एनर्जी मिक्स पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। इस वक्त पाकिस्तान के एनर्जी मिक्स में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की नस्ब सलाहियत 28% है, जो कि 2030 तक बढ़कर 39% हो जाएगी, जैसा कि सितंबर 2021 में नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी नेपरा की तरफ से मंजूर शुदा इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान यानी IGCEP में मनसूबाबंदी की गई है। हुकूमत पाकिस्तान की तवज्जो बिजली की पैदावार बढ़ाने पर मरकूज है, जिसमें हाइड्रो, सोलर और विंड एनर्जी शामिल हैं, ताकि कम ज़र मुबादला अखराज हो। क्रूड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हुकूमत के मंसूबे से मुताबिकत रखता है, क्योंकि ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से एनर्जी मिक्स को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा।
अप्रैल 2016 में इस मंसूबे का संगे बुनियाद रखने के बाद से दरिया की बंदिश, आबी ज़खायर की बंदिश, ट्रांसमिशन लाइन की तकमील वगैरह जैसी कामयाबियों के बावजूद चीनी और पाकिस्तानी इंजीनियर्स और इस मंसूबे पर काम करने वालों ने मुश्तरका तौर पर मुख्तलिफ चैलेंजों पर काबू पाया है। लू ने कुछ चैलेंजेस का जिक्र किया। हमने प्रोजेक्ट की तामीर के लिए बेहतरीन पेशावर अफराद की खिदमत हासिल की, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे टैक्स शेयरिंग। ये मंसूबा आज़ाद जम्मू और कश्मीर और पंजाब की सरजमीन पर वाक़ है, इसलिए दोनों मकामी हुकूमतों के दरमियान टैक्स शेयरिंग का मसला था। हमारी टीम ने दिन रात इस पर काम किया और बिल आखिर हुकूमत, आज़ाद जम्मू और कश्मीर, पंजाब और रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ तकरीबन 1 साल तक जारी रहने वाली मुतअद्दिद मुलाकातों के बाद मुआहिदा तय पा गया। दूसरा, मिसाल के तौर पर ट्रांसमिशन लाइन का मसला। NIDC को करोड़ ट्रांसमिशन लाइन बरवक्त मुकम्मल करने की ज़रूरत थी, इसलिए हमने 2018 से NIDC के साथ बाकायदा मुलाकातें की और उन पर जोर दिया कि वो लाइन वक्त पर मुकम्मल करें। एक और मसला ज़मीन के हुसूल का था। इन मसाइल को हल करने में काफ़ी वक्त लगा। तामीर के दौरान भी लामुतनाही मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने उन तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश की। सब्ज और सस्ती तवानाई के साथ साथ इस मंसूबे ने मुकामी लोगों को रोजगार भी फराहम किया है। तामीर के दौरान यहाँ पहले से ही तकरीबन 3000 से 5000 लोग काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी मुलाजमीन का औसत हिस्सा 75% से ज्यादा है, जो महारत के कई शोबों से ताल्लुक रखते हैं। So the company developed a community investment plan and the हमारी कंपनी ने मकामी आबादी का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने और 655 मिलियन रुपए की लागत से कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट प्लान बरकरार रखने को सबसे ज़्यादा अहमियत दी, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इस मंसूबे से मकामी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचे। CIP के तहत सेहत और तालीम की सहूलियात, पीने के साफ़ पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है और अब तक हमारे पास 10 मंसूबे हैं जो पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं, 5 मंसूबे ज़ेरे तामीर हैं और 4 मंसूबे पाइपलाइन में हैं। गुज़श्ता बरसों पर नजर डालते हुए लोदंगशंग इस पर फख्र महसूस करते हैं, जिसके लिए उन्होंने खुद को वक्फ किया। मुकामी लोगों के साथ राब्तों के दौरान वो इनकी जबरदस्त हमायत से बेहद मुतासिर हुए। शुरू में हम यहाँ आए तो साइट पर कुछ भी नहीं था। जब मकामी लोगों से मिला तो वाकई बहुत मोहब्बत से पेश आए और उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट की बहुत हिमायत की। बाद में हमने मकामी लोगों और हुकूमत से रब्ता किया और सब ने बस यही कहा, हाँ, हम बिजली की किल्लत का शिकार हैं और हमें वाकई इस तरह के प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। बराह करम जल्द अज जल्द आगाज़ करें। तो उस वक्त मैंने बहुत फ़ख्र महसूस किया। तामीराती काम के दौरान बहुत से पाकिस्तानी दोस्तों से मिले जिन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। इसके अलावा यहाँ पाकिस्तान में मुमताज़ पेशावर अफराद की एक बड़ी खेप तैयार की गई है। तामीराती अरसे में यहाँ के लोगों ने बहुत से हुनर भी सीखे। मैं समझता हूँ कि इस मंसूबे की तामीर के बाद वो न सिर्फ सब्ज सस्ती तवानाई बल्कि वसी दायरा कार से भी मुस्तफ़ीद होंगे, जिससे मुस्तकबिल में उनके ज़रिए माश पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। CPEC मंसूबे पर काम करने वाले कारकुन कौमी असासा हैं। लोगों ने इस अजीम मकसद को पाने के लिए सख्त मेहनत की। कौम की तकदीर बदलने के लिए एक गेम चेंजर। लेकिन CPEC का आपसे क्या ताल्लुक है? मैं नहीं जानता कि CPEC क्या चीज़ है, अलबत्ता मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ कि ऑनलाइन चेनें मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर। मेरी ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं किसी बड़े मकसद के लिए जान दूं। मैं इस बात से ही खुश हूँ कि मेरे पास अपनी फैमिली की खाने पीने की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसे हैं। आजकल एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है वो बहुत ईजी हो गया। जिस तरह आपको पता है कि मैं एक व्लॉगर हूँ और मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूँ कि मैं अपने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में प्रमोट करूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं हूँ माज़ेब, मैं चाइना में ही रहती हूँ और चाइना में ही पढ़ती भी हूँ। और चाइना में जो है मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं डेली जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। एक बहुत ही अच्छा ग्रुप चैलेंज फैशन कंपनी, वहाँ पे मेरी जॉब है। और जॉब पे जाने से पहले मेरा डेली का मामूल है नाश्ता मस्ट है, नाश्ता ज़रूरी करना है। और ये मैंने अपनी हैबिट जो है ये चाइनीज़ कल्चर से सीखी। आगे भी इंशाल्लाह हम आगे बढ़ के ड्राइविंग करके रोज़गार कमाकर अपनी फैमिली और बच्चों को भी खुश रखेंगे, उसको अपने मकाम पर पहुँचाएंगे।
اگر یہ آپ کے لیے نہیں ہے تو ان میں سے کسی پروجیکٹ کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہمیں سی پیک کے ساتھ اپنا ذاتی تجربہ بتائیں کیونکہ آپ کی رائے اہم ہے۔ اپنے تجربے کو شیئر اور ہیش ٹیگ کریں #me&cpack۔ ہمارے #me&cpack ویڈیو اور تصویری مقابلے میں شرکت کیجیے۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے ملیں گے۔ خدا حافظ۔